जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। जा रहा है मोदी की मोदी की। Did you just see the action reaction? Rahul Gandhi started by calling Prime Minister Modi Gaddar. And a few days later, his leader from Uttar Pradesh, the man who contested elections against Narendra Modi, Ajay Rai, crossed all lines of civility and decency. He used a word that we can't repeat on national television. So Rahul must own up for this, and this is not the first time, viewers, that the Congress and top leaders in the Congress have resorted to such abusive language for Prime Minister, for their political opponents. So without any delay, let me open this up. Siddharth Yadav is the spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Harshvardhan Tripathi ji is with us. Vivek Silas, national spokesperson of the Samajwadi Party. Ashwini Kumar Mishra may join us in some time. Karan Verma completes the panel. We are also waiting for Kishore Tiwari ji. Mr. Silas, alliance partner, what is this Mohabbat ki Dukan? As far as what Mr. Ajay Rai has said about the Prime Minister, I think it's something that is absolutely absurd. It cannot be, justified in any stretch of imagination. Whatever Ajay Rai has said about the Prime Minister, I think he should immediately apologize to the Prime Minister as soon as possible, Such things, such behavior cannot be tolerated. We are in a democratic country. It is not, you may have difference of opinion whether you are when you are contesting the elections, but such language cannot be tolerated. I can just say that. But Mr. Silas, why are you so surprised? Because like I said, this comes from the top. If Rahul Gandhi, the top leader of the Congress party, uses language in which he calls Prime Minister Modi Gaddar, what do you expect from the rank and file? As far as Rahul Gandhi ji is concerned, I think whatever he said was partially true. I'll tell you how. Because Mr. Modi, our Prime Minister, and the Home Minister Amit Shah have betrayed the country. Definitely, I'll tell you how. Because during the elections, when they were asked about the forthcoming problems in the country, they said everything was fine. And just after the elections, it came down, it boiled down and said that we are under crisis. The people of the country believed the Prime Minister, the people of the country believed in the Home Minister, saying because they are the two top shot of the Bharatiya Janata Party. Silas, also, if you heard Rahul Gandhi carefully, he said Prime Minister Modi is a Gaddar because he attacks the constitution. Yes. This is what he said. The constitution has been, under threat since the Bharatiya Janata Party has come to the power. Right. Because they don't believe in the constitution, that is what we can say. You believe in the constitution? Of course, Mr. we Silas? do. Of course. Why Who not? imposed the emergency? Was that an assault on that the was constitution? bad. And Congress, that was bad, and Congress so suffered Indira for Gandhi, that. Would you call Indira Gandhi Gaddar? Congress suffered for would that. Would you call Indira Gandhi Gaddar? That's my question. I asked you a simple question. You said Rahul Gandhi is true. Let me tell you how. Now, if Rahul Gandhi is true in calling Modi Gaddar because he thinks he has attacked the constitution, then what stops you from calling or labeling Indira Gandhi Gaddar? Let's hear it from you. The people of the country, defeated Indira Gandhi in 1977 she was out of power. That's okay, Mr. Silas. I know that what happened to her. But why can't you call her Gaddar if you can call Modi Gaddar? I said that Modi and Amit Shah both have betrayed the country. But you Definitely said Rahul they have Gandhi betrayed was the true. country. They have lied to the country. That is the word. You can say that, your they have political lied to the opponent has country. lied. They have betrayed the country. They have, lied. Did Indira Gandhi betray the country? Daylight. Mr. Silas, did Indira Gandhi betray the country? Indira Gandhi got whatever Did she betray the country?
No, don't put. Why can't you use the same words that you are using for Prime Minister Modi, Mr. Silas? The words in my mouth. I am not Pranesh. putting. I am only exposing your put the words hypocrisy. in my mouth. I am not trying to. I am using the words that you are using to describe PM Modi. If you can call him Gaddar or say that he is betrayed, why can't you use the same word for Indira Why Gandhi? don't you say that Indira Gandhi sacrificed herself for the country? I am Didn't willing she? to say that. Come on. I am Who's willing today to going say that. I am not sacrifice using herself for himself for the country. 1 minute. She was a lady who did a lot for the country. So emergency was a dark period. Because Indira Gandhi was assassinated, she lost her life. So emergency was justified. Is that your argument? No. Then Emergency the cannot act of be emergency, justified. Mr. Silas, आप तो अपने मन की बात हमेशा बोलते हैं. You don't mince your words. If you believe PM Modi has betrayed the constitution and he's a Gaddar, why can't you use the same label for Indira Gandhi? Simple question. Gaddar could be a hard word. What Mr. Rahul Gandhi has used. There you go. It could be a hard word. I'm there is glad no you are at doubt- least conceding. But there is no doubt, Pranesh, please listen to me. There is no doubt in my mind that the Prime Minister and the Honorable Home Minister have betrayed the country. Okay. They have lied to the country. Karan, it started from Rahul Gandhi's Gaddar, and now, such a word has been used that I can't repeat. So, Pranesh, first of all, Ajay Rai is a habitual offender. I mean, we can dig into the past. But the worst thing is, and that is what I want to ask our good friend Silas Ji, Vivek Silas Ji, 1 year back, approximately 1 year back, same Ajay Rai mocked the Indian army. And he brought out a mock-up of Rafale and said कि ये सब इस पे नींबू और वो सब मिर्ची लगा लो और कुछ नहीं होगा. आपको पता है ठीक उसके 2 मिनट बाद सपोर्टिंग हिज स्टेटमेंट किनकी स्टेटमेंट आई थी? माननीय अखिलेश यादव जी की आई थी. और उन्होंने कहा था यहाँ कुछ नहीं बनता है, यहाँ पे कुछ नहीं डिफेंस का बनता है, जबकि डिफेंस का बहुत कुछ बनता है. आज 65% हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो तब अखिलेश जी और अजय राय जी की कमाल की जुगलबंदी चल रही थी. आज वो जुगलबंदी देखिए कहां चली गई. आप इंदिरा गांधी को भी कहते हैं इमरजेंसी में गलत किया. एक सेकंड मेरी कंप्लीट हो जाने दीजिए बात. फिर आप उनके गोद में जाके बैठ जाते हैं. आज कांग्रेस के साथ हैं आप. अजय राय की आज आपको चीज नहीं ठीक लग रही, फिर भी आप अलायंस रखते हैं. तब आप सपोर्ट कर रहे थे व्हेन दे वर मॉकिंग द इंडियन आर्मी. सो सर, टिल वेयर आर यू गोइंग टू कीप डिफेंडिंग देम? You are going to condemn here and then you are going to do galbaliya with them. This can't work like this, na? It's not only in Congress of what Mr. Ajay Rai said. That was that at that time the entire country was boiling, and I think the government of the country was not taking any action. Of course, so it was. We bashed they Pakistan. took it after. Yeah, we did. No, Mr. we Silas, did. I mean, what are you saying? Because action nahi liya Wait, ja raha tha, wait, you will wait. resort to such Pranesh, language. let me explain, please. At that Please, it's time, very something. one statement, Karan, then you please. can explain. I didn't. Even Lal Bihari Yadav, by the way, their Vidhan Parishad talk about him said every पहलगाम time, करवाया गया है राजनीतिक ढंग से. actually. तो सर आप लोग की पूरी जुगलबंदी चल रही थी जब That देश के लिए खड़ा होना था. please listen to me. एक मिनट. What Mr. Ajay Rai Let's said not at that digress. time कि आप 15, 1600 करोड़ के रफेल लेकर Okay. आए हैं, तो रफेल इसको का क्या कर चुके हैं देखने चर्चा. के लिए लाए? विवेक जी, Use them. Okay, one पूरा minute. सपोर्ट था इनका. जुगलबंदी थी अखिलेश जी और अजय राय भारतीय के जनता खिलाफ. पार्टी के लोग कर्नल Mr. Silas- सोफिया कुरैशी को Mr. Silas, आतंकवादी की Karan बहन Verma, कहें, 1 minute. Let me bring in पंजाब के नेता कहें Ashwini कि Kumar, हमारी 1 minute. एयरफोर्स जो Please, है आलसी gentlemen, है. Don't तो ठीक talk है. over each other, please. Mr. Ashwini Kumar is here. मिश्रा जी, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था May 1st को. It will come up on your screen. This is what he said about अजय राय. उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ है. मैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. यह उन्होंने कहा है 1 मई को. आज 22 तारीख है. 21 days later, Ajay Rai has said what he has. Pranesh, I think तुम लोग बहुत ज्यादा राई का पहाड़ बना रहे हो. I agree that the words used were not appropriate and slip of a tongue, but I am quite shocked to look at the standard of journalism we are seeing here right now and making mountain out of a mole. There has been similar language used by Hemant Biswa Sharma for Pawan Khera, and I did not see any single media debate on that. Yes. Having said that, I don't think it is a burning issue right now for the country to debate. जब भी आप लोगों को डिबेट का यही टॉपिक मिलता है, मोदी जी भी आके भाषण में यही बोलते हैं, मुझे 1 किलो गालियां मिलती हैं, 2 किलो गालियां मिलती हैं, and when they speak the same language and they get the test of their own medicine, you keep debating it. अश्विनी The जी, burning right now अश्विनी is- जी, आंसर माय क्वेश्चन. आप तो पहले ही क्वेश्चन पे गुस्सा हो गए कि तुम लोग ये करते हो वो करते हो. देखिए, भाषा की मर्यादा रखिए. मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपके नेता हिमंता बिस्वा शर्मा है या राहुल गांधी है?
मोहब्बत की दुकान किसने कौन चला रहा है? गणेश, आपने मेरा स्टेटमेंट सुना नहीं। मैंने शुरुआत में बोला द वर्ड्स यूज्ड वर नॉट एप्रोप्रिएट एंड इट मस्ट बी अ स्लिप ऑफ टंग, हाउएवर इट यू आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ अ मोल एंड my concern is you are not debating the important issues which country is going through, and if you really want to debate these issues, so called non issues, then debate on the both sides. You abuse the prime minister and this was no slip of tongue. उन्होंने 2 बार बोला, रिपीट 2 बार स्लिप हो गए, मतलब एक बार कोई स्लिप होके गिरता है फिर उठ के वो फिर से स्लिप हो गया। ये तो कांग्रेस में ही पॉसिबल है ऐसा स्लिप ऑफ टंग। देश का इस डिबेट से कोई भला नहीं होने वाला। देश का भला होगा, आप बताएंगे कि नीट का पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान बता दिया ना हमने, नीट का पेपर लीक हुआ, एक्शन होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, बता दिया। तो आप अपने नेताओं को क्यों नहीं कहते कि नीट पे कुछ बयान दे देते? राहुल गांधी गद्दार कह रहे, उससे देश का भला हो रहा है। राहुल गांधी अगर किसी को गद्दार बोलते हैं तो वो जो आप कह रहे हैं भला कर रहे हैं किसी का। गणेश, 2017 में जो एनटीए बनाया गया था नीट पेपर लीक होने के बाद, वो क्या गुइयां छीनने के लिए बनाया था? कोई बात नहीं, राहुल गांधी शुड बी सिटिंग आउटसाइड, नो आउटसाइड द एनटीए ऑफिस इन प्रोटेस्ट। ही शुड बी सीकिंग एक्शन अगेंस्ट हुएवर ही वांट्स। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी। राहुल गांधी जी को बैठ जाना चाहिए वहां पे। व्हाट इज दिस लैंग्वेज? हर्षवर्धन जी। नहीं प्रणय जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि राहुल गांधी, अजय राय और इस डिबेट पर अश्विनी मिश्रा जी ने आज जो शब्दावली उपयोग की है, यहाँ कोई चाय की दुकान पर अपने मित्रों के साथ थोड़ी ना बैठे थे। जिस भाषा में इन्होंने शुरुआत की, मुझे तो नहीं समझ में आता कि ऐसे कोई एंकर के लिए बात करता है। और ये तो रेगुलर डिबेट में आते हैं, फिर भी इनको भाषा की मर्यादा नहीं पता है। मतलब विचित्र है ये। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखें तो जो राहुल गांधी कर रहे हैं वही नीचे तक जा रहा है, चाहे वो उनके प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर टीवी पर कांग्रेस के जितने समर्थक नेता आते हैं वो। राहुल गांधी ने जिस तरह से गद्दार कहा है, विवेक साइलस बेचारे भले मानुष हैं, अब प्रवक्ता है पार्टी के, लेकिन जरा आप उनका पूरा वीडियो देख लीजिए। कह नहीं पाए वो, कोशिश किया उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने धोखा दिया है, झूठ बोला, चुनाव के वक्त वो नहीं किया, कुछ उन्होंने कहा, लेकिन अंत में आते आते वो कह गए कि नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कोई भी जो जरा सा भी संवेदनशील व्यक्ति होगा, जिसके अंदर थोड़ी सी भी मर्यादा सभ्यता बची होगी, वो ये बात कहेगा। लेकिन अजय राय क्या करते हैं? उन्होंने प्रमाण दिया कि मैं स्वस्थ होने वाला ही नहीं हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सद्भावना उनके प्रति सत्कामना की थी कि आप जल्द स्वस्थ हो जाइए। उन्होंने कहा मैं स्वस्थ हो ही नहीं सकता। उन्होंने प्रमाण दिया कि मैं कितना अस्वस्थ हूं, कितना भयानक बीमार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने उसका प्रमाण दिया है। और उस स्लिप ऑफ टंग नहीं है। सेना का जब वो मजाक कर रहे थे तो कोई यूं ही एक्शन नहीं लिया था। विवेक भाई, वो भी ऐसा नहीं था कि राफेल का इस्तेमाल करो, सब इस्तेमाल किया। भारत ने कोई इस्तेमाल में कसर नहीं छोड़ी। असली मुश्किल यह है कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थक के तौर पर जो अश्विनी मिश्रा बैठते हैं, वो भाषा की मर्यादा पहले एंकर के साथ तोड़ते हैं और उसके बाद वो कुछ भी ऊटपटांग बोलते चले जाते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी चीज स्पष्ट समझिए, आज तक भारत ने किसी को भी निगेटिव कैंपेनिंग पर चुना नहीं है। जिसने भी ये गड़बड़ी की है ना, उसका पत्ता साफ हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, गायब हो गया, वो कोई राजनीति में बचा नहीं है। और अगर कांग्रेस को लगता है, राहुल कांग्रेस को, कि कांग्रेस तो ये ऐसी तो नहीं थी कांग्रेस, राहुल कांग्रेस को अगर ये लगता है, तो मुझे लगता है कि राहुल कांग्रेस के जो कहते हैं ना 99 के फेर तक पहुंचे हैं, अभी फिर से वो उसी विशेष साइकिल का शिकार होते हुए दिख रहा है। मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा। अश्विनी जी कुछ कह रहे हैं आपसे। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी कौन सी भाषा हर्षवर्धन जी को ऑफेंसिव लग गई। व्हाट आई स्टार्टेड विद, हाँ बता दीजिए, पहले मैं आपको सुन लेता हूं। टेलीविजन चैनल पर आप कह रहे हैं कि तुम राई का पहाड़ बना रहे हो, ये भाषा हो सकती? क्या भाषा होनी चाहिए थी? राई का पहाड़ बनाने को आप कैसे बोलते हो? लेट मी से यू आर मेकिंग माउंटेन ऑफ एन मोल। अंग्रेजी में चलेगा आपको या आपको हिंदी में दिक्कत है? नहीं, कहना क्या चाह रहे हो हर्षवर्धन जी? वो क्या है इसमें ऑफेंसिव क्या है? अरे वो समझ ही नहीं पा रहे, छोड़ दीजिए इस बात को। वो टीवी डिबेट में बैठे हुए अश्विनी जी, हम लोग कोई गेस्ट रूम में बैठकर हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, आप कुछ तो समझिए। जी, आपकी नैतिकता तब कहां चली जाती है जब माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को
सेम वर्ड यूज करते हैं, गद्दार, ट्रेटर, तब आपकी नैतिकता कहां चली जाती है? तब आपका अंदर का जर्नलिस्ट मर जाता है क्या? आप बताइए, तब आपके अंदर की जर्नलिस्टिक एथिक्स कहां चली जाती हैं? अभी हमारे करण वर्मा जी बोल रहे थे कि हमने राफेल का मजाक बनाया, आर्मी का मजाक बनाया। भाई सरकार सवाल पूछना कब से आर्मी का मजाक बन गया? दैट कंट्री वाज बर्निंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग एन रिएक्शन टू द पाकिस्तान एंड वी आस्क्ड दैट क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। I'll tell you what the question was. What Rahul Gandhi said, Ashwini ji, was not a question. He was speaking outside parliament. He was asked a question on Operation Sindoor. He said, I don't think we've achieved victory in Operation Sindoor. He said, Narendra, surrender. Yeah, this was not a question. Narendra surrender भी बोला था. He surrendered in front of the USA. तो ये कोई सवाल नहीं. The world knows so, it. you know, Not only don't India, hide the world behind knows it. the usual rhetoric. Let's turn to Siddharth Yadav. Siddharth Yadav, not the first time. You should get used to this. ये मोहब्बत की दुकान से फ्री फ्लो है. Yeah, absolutely, Pranesh. I think, one line in Hindi would exactly describe the situation. Jaisa guru, vaisa chela. If what is flowing from the top office will have to continue in the down office. You see in any organization, अगर आपका सबसे बड़ा नेता गद्दार बोलेगा, तो आपका जो नीचे का नेता होगा, वो ऐसी ही भाषा बोलेगा. And then we have people like Ashwini ji sitting on your show and defending it, saying that it's a slip of tongue. 2 बार होती है slip of tongue? कैसे होती है? More so, he is not a fringe element. Ajay Rai is not a fringe worker of the Congress party. He is a chief of the UP Congress Pradesh Congress Committee. He needs an Ashwini Verma to explain what he is saying. He can't come out and say, you are using these words for the Prime Minister of our country and then you think it's justified. And then you want that, iska rai ka pahad mat banaiye. Kya kare? You want to normalize this. You have started saying such filthy language in Indian politics. You have crossed all limits. There is no, no standard which is left of the Congress party. And then you want to say, "Arey rai ka pahad mat banaiye." Don't make a mountain out of a mole. What do? Don't debate this. This is normalized. You can say anything and everything. But I think this is the culture of Congress party. And specifically the culture of Rahul Gandhi. Karan? The frustration that Rahul Gandhi is full of, the frustration of multiple losses, the frustration of people not electing him, the frustration of people rejecting him is now coming out. So you believe this is the political frustration manifesting in the way it is. Karan, if Ashwini ji is right that, people can make mistakes. Even on a debate like this, I can say something wrong. He can slip out. वो हो सकता है slip of tongue, it is possible. But the moment I realize, I will apologize. So Pranesh, what all has slipped by the way? Nana Patole, महाराष्ट्र कांग्रेस का चीफ, he said मैं मोदी को मार भी सकता हूं. Imagine the language. ये महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ थे तब नाना पटोले. जनवरी 2022 की बात बता रहा हूं मैं आपको. अश्विनी जी, you think this is a राई का पहाड़ बनाना है आपके हिसाब से? कोई कह रहा मैं मार भी सकता हूं. इमरान मसूद, बोटी वो कभी सपा में होते हैं, कभी कांग्रेस में होते हैं. जहां ये लोग टैलेंट हंट करते हैं, जो मोदी जी को अच्छी गाली दे सके हम उसको रिक्रूट कर लेते हैं अपनी ओर. राहुल गांधी हिमसेल्फ 6 महीने में मोदी बाहर नहीं निकल पाएगा, नहीं तो जनता डंडा मारेगी उसको. This is the language, and then Ashwini ji has the gall to act so coy and tell हर्षवर्धन जी कि आपको कौन सी बात अच्छी नहीं लगी. अरे आप लोगों ने संस्कार का क्या किया? और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जस्टिस गवाई, कितने जस्टिसेस ने कहा है that Rahul Gandhi doesn't know how to speak. His words lack moral turpitude. Exact words. There are court pronouncements against Rahul Gandhi. सारे मोदी चोर हैं, भारत की सेना मार खा गई. इनको आपके लिए भाषा का कोई मतलब ही नहीं है क्या? And you then want the journalists to not even make it an issue. It is an issue when you speak like this. Talk on issues, most welcome. We are ready to debate that. But first you need to learn how to speak about a prime minister and learn how to speak to the citizens of this country. Kishore Tiwari ji, Siddharth, I'll come to you. Kishore Tiwari ji, is this the language? देखिए, मैंने करण को भी सुना और सिद्धार्थ जी को भी सुना. आपने अजय राय को सुना? अरे भाई, मैं बता रहा हूं ना, अजय राय हो या फिर राहुल गांधी भी हो, भाषा की मर्यादा बहुत आवश्यक है. हाँ, हमने कितनी भी भाषा ओछी की है, लेकिन फायदा तो नहीं हो रहा. भारत की जनता तो मोदी जी को चुन के दे रही है. हाँ, वो तो लोकमान्य नेता हो चुके हैं और ऊपर से
अपोजिशन को ये बात समझनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन क्या होता है। हम सरकार के मुद्दे पर कौन सा आंदोलन हो रहा, नीट पर, किसान के मुद्दे पे कौन सा हो रहा, महंगाई पे कौन सा हो रहा, भ्रष्टाचारों पे कौन सा हो रहा, लेकिन विवादित बयान देने के बाद, सिद्धार्थ, विवादित बयान देने के बाद ये सब होता है। अश्विनी जी ने जो कुछ भी बोला, नहीं, किसी को, प्राइम मिनिस्टर को आप कुछ भी बोलोगे और आप ही बोलोगे राय का पहाड़ हो गया। राय का पहाड़ नहीं हुआ। लेकिन प्रणेश, एक बात ये तुमने याद रखना, जैसे विपक्ष में ऐसे बड़े बोले लोग हैं, वैसे बीजेपी में भी है, उटपटांग चीजें बोलते रहते हैं। नहीं, जो आप सही कह रहे हैं, जो भी है, जो भी अगर वो मर्यादा क्रॉस करेगा, हम उनको ये कहते हैं कि इन्होंने गलत कहा है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमेशा कहा है मैंने, तो कभी उसमें किसी ने नहीं कहा कि आप राई का पहाड़ बना रहे हैं, या जो भी अश्विनी जी कह रहे हैं। बट राहुल गांधी, मैं तो ये कह रहा हूं किशोर तिवारी जी, अब आप पे भी अटैक होगा। अश्विनी जी का जब मैं उनके पास जाऊंगा तो वो कहेंगे कि आपने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है या आप लिस्ट में हैं, क्योंकि आप वो पोजीशन ले रहे हैं जो विवेक साइलस ने भी नहीं लिए। ये तो अलायंस पार्टनर है, और आपके तो बहुत अच्छे एक मित्र हैं जिन्होंने कहा था उखाड़ दो, वो भी कोई बहुत अच्छा भाषा तो था नहीं। देखो प्रणेश, हमने, हमारे जो इंटरनेशनल प्रवक्ता है, उन्होंने जो भाषा का उपयोग किया, तो उसकी कीमत हमको चुकानी पड़ी। ये बात आप समझते क्यों नहीं? नहीं, मैं तो समझता हूं सर, पार्टी में शायद नहीं समझ रहे, इसीलिए वो इंटरनेशनल प्रवक्ता है और आप अभी लोकली बने हुए हैं। ये प्रॉब्लम है, जो गाली दे रहा है वो आगे जा रहा है। अरे भाई, जो पार्टी 5 लोगों पे के पास सिमट गई है, वहां पर बोलने के लिए लोग ही नहीं है, तो बेचारे वो बोलते हैं और उनको दिन भर विवादों में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो अजय राय ने उनसे सीख लिया है। अब मैं पूछ लेता हूं विवेक भाई से, आप डू यू अग्री विद व्हाट किशोर तिवारी सेइंग? ही इज नॉट फ्रॉम द बीजेपी। नहीं, लैंग्वेज, सच absurd language used by anyone, be it Ajay Rai, or I think any politician should keep calm. I think if Congress UP chief has used such derogatory language against the Prime Minister, sir, if he has, yes sir, if nahi, matlab he has, that is absolutely, cannot be justified. It's absolutely absurd. But let me tell you one thing. मुझे लगता है कि आपसे मुझे पहले पूछना चाहिए था। आपने जो बोली उसके बाद विवेक साइलस भी अब संभल के बोल रहे हैं। नहीं, ये ऐसा होता है, अच्छा सुन के लोग अच्छा बोलते हैं। 10 सेकंड और दे दीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी या हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो उनके मुंह से भी निकल जाता है बेटी बचाओ बेटी पटाओ, सहारनपुर की लड़कियां, हाइब्रिड बछड़ा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी। ये तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है ना, ऐसा नहीं है। तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कितना बड़ा लीडर हो। Pranesh, I wish to ask a very simple question to Vivek Silas जी। विवेक जी, कोई दिन तो ऐसा होना चाहिए, कोई डिबेट का दिन ऐसा होना चाहिए जब जमीर थोड़ा सा जागृत रहे। ऑन 1st of May, PM is wishing best of health to अजय राय। बेस्ट ऑफ हेल्थ। उनके स्वास्थ्य खराब है, उन्होंने कहा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। उसका रिएक्शन आप ये देंगे गाली दे करके? आप भी इसको स्लिप ऑफ टंग बताएंगे? नहीं, आप भी इसको कहेंगे कि जस्टिफाइड है? व्हाट आर वी स्पीकिंग ऑफ? हम किसकी बात कर रहे हैं? मैं, विवेक जी, आई एम वेरी सॉरी, कुछ चीजें आई थिंक योर पार्टी इज इवन स्मार्टर देन कांग्रेस पार्टी। डोंट फॉलो द स्टेप्स ऑफ कांग्रेस पार्टी। आप कई बार गलत को गलत कह लेते हैं, कह दीजिए, इससे गलत कुछ नहीं कहा जा सकता। देश के प्रधानमंत्री को, प्रदेश का मुख्यमंत्री। सिद्धार्थ, आई एम टेलिंग यू, द समाजवादी पार्टी विल नॉट फॉल इन दिस ट्रैप। हर्षवर्धन जी भी बोलते रहते हैं, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आएगी उत्तर प्रदेश में, क्या लेना देना? अरे टिकट से लेना देना है, तभी आप नहीं बोल पा रहे हैं। अब
लास्ट मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? आप कितनी देंगे कांग्रेस को सीटें? नहीं देखिए, नहीं, आप तो कमिटी में भी हैं सर। टीवी डिबेट पे डिसाइड होगा क्या? सीनियर मेंबर आप नहीं, आप तो कमिटी में भी है विवेक साइलेंस जी। ये इससे अच्छा एक बात बताइए, जो गाली दिया है इससे सीटें बढ़ेंगी कि कम होंगी? तो बताइए। नहीं, इससे तो नुकसान होगा, जरूर होगा। किसका नुकसान होगा? जरूर होगा, कांग्रेस का नुकसान तो होगा। और आप जो साथ में, तो आपका नुकसान नहीं होगा? नहीं देखिए, मैंने तो बैठते ही कहा, सिद्धार्थ भाई से पूछिए कि अजय राय को तत्काल इस पे माफी मांगनी चाहिए। मैंने पहला शब्द ये कहा, नहीं, इन्होंने पहला शब्द मैंने कहा था। बड़ी बात कही है, नुकसान होगा। ये अश्विनी जी को इन्होंने मैसेज दे दिया है। इस तरह की लैंग्वेज अब माफी मांगने मिलेगी। प्रधानमंत्री जी सीनियर हैं, अजय राय से एज में भी बहुत ज्यादा है, पद में भी बहुत ऊपर। सर वो माफी, अगर वो माफी मांग लेंगे तो कोई बुराई नहीं। क्यों माफी मांगेंगे? अगर राहुल गांधी गद्दार कह रहे हैं तो उनके नेता क्यों माफी मांगेंगे? किया इन्होंने, ये दरभंगा की रैली में भी थे, आपको पता है प्रणेश, विद राहुल गांधी मंच पर, एंड मोदी जी मदर वाज बीइंग अब्यूज्ड एंड ही स्माइल्ड एंड they were not on the stage. He was. No, Ajay Rai was. don't lie. अरे please, after they had left the stage, did he come out? Did he come and condemn the it? person who abused the prime minister please, sir. was not even a member of the Congress. Sir, No. we did not Was see not any even a condemnation. member of the Congress. For that So kind don't of- mislead the people. No, I'm sir. not Please. misleading. Please let me What is complete. justified is justified, and what is wrong is wrong, अच्छा, and will always stay मेरी बात सुनो। wrong. अजय राय was on the stage जब chant start हो गई थी, he smiled, he left. When abuses happened, he did not come back and condemn it. It was about क्या होता है 10 सर? minutes Condemn कर after सकते they had थे। left the stage. You Come could on. have- they could have come We and have condemned. also seen rally. पहली बार Okay, किया है। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन RSS जी, के बारे में क्या क्या बोला हुआ है इन्होंने? Exactly. शब्दावली। हर्षवर्धन पहली जी, बार क्या अजय राय? आप एक बार you have the last word, then we move on to the second topic. Habitual offender है ये। देखिए प्रणेश भाई, मुझे लगता है कि इस डिबेट में एक अच्छी चीज हुई कि सबको समझ में आ गया है कि अजय राय ने बड़ा गंदा काम किया। अश्विनी जी को भी समझ में आ जाए तो हम लोग डिबेट यहीं खत्म कर दें, पूछ लेते हैं। और माफी मांगने की जहां तक बात है, तो क्या अभी तक अजय राय ने माफी मांगी? मैंने जो इस डिबेट में आने के पहले चेक किया, अभी तक नहीं मांगी। आप तो किसी ने नहीं, अभी तक नहीं मांगी। फिर मैंने कहा विवेक साइलेंस ने कहा है कि माफी होनी चाहिए। उन्होंने मांग लिया कि हमारे अलायंस पार्टनर है, हमें नुकसान ना हो, मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने कह दिया, ये तो बोल सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल बोल सकते। तो आप फायदे की- हाँ बिल्कुल। अश्विनी जी माफी मांग लीजिए, नहीं तो सपा का नुकसान हो जाएगा यूपी में। प्रणेश, मैंने पहले ही बोला कि वर्ड्स वर यूज वर नॉट अप्रोप्रिएट, बट मुझे आप अपनी एक डिबेट दिखाइए जहां पर आप हेमंत विश्व शर्मा के स्टेटमेंट पे डिबेट की हो। दिखाइए एक डिबेट। सतपाल हिम्मत सत्ती नहीं ने है गुरु। राहुल गांधी को ठीक है मान लिया, सोनिया गांधी जी को गाली दी थी, दिखाइए डिबेट आपने कब डिबेट की, कितने नाम गिनाओ इनको। दयाशंकर ने मायावती के लिए क्या बोला? मोदी जी खुद ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सतपाल सत्ती, विजय शाह, कितने नाम, रमेश बिदुड़ी, कितने लोगों का नाम गिनाऊं मैं? सर रमेश बिदुड़ी, एक मिनट, विजय शाह, रमेश बिदुड़ी पे मैंने क्या कहा है आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, वो डिबेट्स है। और वो अगर नहीं मिले आपको तो वो आप ट्वीट भी कर सकते हैं कि मुझे कहा था एंकर ने, लेकिन मुझे मिली नहीं डिबेट। अश्विनी जी, मुझे लगता है आप भी थे विजय शाह वाले डिबेट में, और रमेश बिदुड़ी पे मैंने क्या कहा था वो आप जरूर देख लीजिएगा। वील हैव टू मूव ऑन टू द अदर बिग स्टोरी दैट वी हैव टू डिस्कस।